हाँ जी. Yesterday I have given you some questions to solve them or represent them graphically. In that assignment, there was a last question in which I have given you that these are the equations which are representing the railway track or rail, okay, and represent graphically and show that they will never intersect with each other. They will not intersect with each other. Now let's talk about the system now. जो अपन कह रहे हैं ना, ये सिस्टम हो जाता है, ये सिस्टम ऐसे सॉल्व होता है, ये वो. तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो वेरिएबल्स कितने डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, उन डिफरेंट फॉर्म्स के इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमेशा ही सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमेशा ही वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे ग्राफिकली, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट होंगे तो उनका कैसा फॉर्म आएगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी या किसी और फॉर्म में आ सकती हैं. ये सब बातें करेंगे आज. तो आपको ये सब कॉपी में लिखना है. अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, फिर से कह रहा हूं, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं मेरे साथ में, आप समझने पे जोर दीजिएगा. अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, राइट? सो आप आज समझिए, मैं आपको शाम तक आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा. द मैनर इन विच यू हैव टू राइट द चैप्टर, यू हैव टू स्टार्ट द चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. A pair of linear equations to variables. In ninth standard, we have gone through this, that a linear equation in two variables in its standard form can be written as in this form. Remember, ax plus by plus c is equals to 0, where the coefficient of x is a, the coefficient of y is b, and the constant term is c. A linear equation in two variables has infinite number of solutions. I would like to repeat this sentence. A linear equation in two variables, एक linear equation in two variables, a linear equation in two variables has infinite number of solutions. But when we have been provided with a pair of linear equation in two variables, यानी हमें अब जब pair भी provided होगा, एक और equation provided होगी, so we can solve it, or we can say these are simultaneous equation, और इसको हम कहते हैं system है. लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कौन सी इक्वेशन फर्स्ट और कौन सी इक्वेशन सेकंड है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जैसे अपन फिजिक्स में करते हैं, लेट द टू masses m1 and m2, let their initial velocity be u1 u2, their final velocities are v1 v2, the forces applied on them are f1 f2. क्या करते हैं हम, डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 और 2 नाम देते हैं. वैसे ही ऐसा करते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, तो इसको a1 b1 c1 और इसको a2 b2 और c2 कह लेते हैं. चेक कीजिए क्या कहा जा रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमें दिया हुआ हो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होना चाहिए. दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है. पहले वाले के कोएफिशिएंट्स एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स को हम a1 b1 c1 कह लेते हैं, और सेकंड वाले इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम a2 b2 और c2 कह लेते हैं. क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या होगा, दोनों इक्वेशंस डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, दैट वी दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, राइट? Now you can start writing it in your copy. This is what a pair of linear equations in two variables. This is the standard form, right? Now, by comparing the ratios of x, y, and the constant term, we can indicate, or we can jump into the conclusion whether the system will be solved or it will remain unsolved, whether the graphical representation or geometrical representation is a pair of intersecting lines or parallel lines or overlapping lines or something like that. क्या करना है अपने को समझते हुए चलते हैं. चलो, अगर किसी केस में a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल ना हो, the ratio of a1 a2 is to b1 b2 is not equal, then the system has a unique solution. That means the system can be solved. And geometrically, what we will be getting is a pair of intersecting lines. Geometrically, ऐसा सिस्टम जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है. याद कीजिए, देखिए, आपने जितने भी अभी तक मेरे मंडे से लेकर के आज तक जितने क्वेश्चंस करे हैं, उन सब में यही था.
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हो या हमने उसको कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड से किया हो, ये सारे के सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के केसेस थे। केवल कल जो ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन दिया था ना मैंने, ट्रेन वाला, रेलवे ट्रैक वाला, वो अलग था। बस उसके अलावा सब में हमें क्या था, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, एक एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू थी, वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, जिसके लिए वो सिस्टम सॉल्व होता है ना। यानी दो पेयर, दो इंफॉर्मेशन हमारे पास में हो, उसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो तो सिस्टम सॉल्व होता है, वरना सिस्टम सॉल्व नहीं होता, राइट? ऐसा कह सकते हैं अपन। A unique solution, that means it will have only one solution, x की वैल्यू ये आएगी और y की वैल्यू ये आएगी, ऐसे। चलो ऐसे समझते हैं। इसको समझते हुए कोई एग्जांपल लेते हैं। दो फ्रेंड्स हैं और उन्होंने टुगेदर दे हैव स्पेंड 100 रुपीज। So we can say the contribution of first friend be x, let the contribution of the second friend be y, and together they have spent 100 rupees. But the difference of the amount they have spent is 20 rupees. But the difference of the amount they have spent is 20 rupees. Now, if you will look at the problem, it can be solved by graphical method also. You know how to solve it by the coefficient method also. The answer is 60-40, I suppose. Check कीजिए, क्या 60 और 40 के अलावा इस सिस्टम का कोई और आंसर हो सकता है? क्या इसके अलावा 60 और 40 के अलावा और कोई इस सिस्टम का आंसर हो सकता है? Again, I'm not talking about the first equation because we know that there are infinite number of solutions of the first equation. There are infinite number of solutions of the second equation also. But when we are talking about a pair, this one is a pair, this is a system, then the system has only one solution and that is 60-40. क्या 60 रुपीज और 40 रुपीज के अलावा कोई और ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं? दोनों को नहीं कर सकती, है ना। सो दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। और ये क्यों हुआ, अब चेक करते हैं जरा। a1 1 है, b1 1 है, यहाँ पे a1 1 है और b1 -1 है। जरा रेशियो देखो, 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/-1, इसलिए ये सिस्टम सॉल्व हो गया। जब रेशियो a1 और a2 का b1/b2 या b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता तो सिस्टम सॉल्व होता है, वरना वो सिस्टम सॉल्व नहीं होता, ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। सो द सिस्टम कैन बी सॉल्व इफ एंड ओनली इफ व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इन दिस केस व्हाट वी विल बी गेटिंग, ज्योमेट्रिकली वी विल बी गेटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो किसी केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और वही उसका आंसर होगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा और क्या हो सकता है? हमें किसी उन दोनों फ्रेंड से पूछा कि चलो आप बताओ, जो कल शाम को तुमने एक छोटी सी ट्रीट करी थी, एक पार्टी करी थी, उसमें कितने पैसे खर्चे? उन्होंने कहा हमने वी हैव स्पेंड 100 रुपीज। देन अगेन वी आस्क्ड हिम दैट हाउ मच यू स्पेंड। वी आस्क्ड फ्रॉम ए, सपोज ए से पूछा जिसका एक्स कंट्रीब्यूशन है, उसने बोला हमने मिलके 100 रुपीज खर्चे थे। दूसरे वाले ने पूछा तो उसने कहा कि हमने दोनों ने मिलके 500 रुपीज का खर्चा किया था कल। क्या कहेंगे आप इन दोनों को? बेवकूफ मत बनाओ यार। उससे पूछा था, वो तो कहता था 100 रुपए की ट्रीट दी है, तू कहता है 500 रुपए की हमने 500 रुपए खर्च कर लिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो पक्का ही गलत बोल रहा है, और हम कभी भी इसके आंसर नहीं निकाल सकते कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप सोच के देखिए ना, क्या एक्स और वाई की वैल्यू दो ऐसी हो सकती है जिनका सम 100 हो, फिर कह रहे हैं जिनका सम 500 हो। भाई एक बात बोल, या तो 100 रुपए खर्च किए या 500 रुपीज खर्च किए, हाउ मच यू हैव स्पेंट, लेट अस नो। तो हम उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार हमें नहीं पता तुमने क्या किया, तुम दोनों ने कितने पैसे खर्च किए, है ना। इस तरह के सिस्टम में जब हमारे पास में a1/a2 is equals to b1/b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, जैसा कि इस केस में है, 1/1 is equal to 1/1 is not equal to 100/500 और 1/5 -100/-500 भी कह सकते हैं, 1/5 भी आएगा ना बेटू, ठीक है। सो कभी हाँ कभी ना, किसी शाहरुख खान की मूवी का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कभी हाँ कभी ना, इसका मतलब द सिस्टम कैन नॉट बी सॉल्व,
ये सिस्टम सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक बात पे कायम ही नहीं है अपने। ये अभी बोलते हैं 100 रुपए खर्च किए, कभी कहते हैं 500 रुपए खर्च किए। So when A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, but it's not equals to C1 upon C2, so the system cannot be solved. The system has no solution, and the lines are parallel lines. Geometrically, we will be getting two parallel lines. Now, I'm not having that question, or maybe I may be having that question. नहीं, I'm not having that paper today. लेकिन जो आपको कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 5th क्वेश्चन दिया था ना मैंने, आप उसको चेक कीजिएगा, उसमें पक्का ये सिस्टम था। A1 अपॉन A2 पक्का B1 अपॉन B2 के इक्वल होगा, और C1 अपॉन C2 के इक्वल वो नहीं होगा, और इसलिए वो पैरेलल ट्रैक से वो पैरेलल लाइन थी। चेक कीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क। ओके, 5th क्वेश्चन जो आपको कल दिया था। So in a system when A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, but it's not equals to C1 upon C2, the system has no solution. उस system का कोई solution नहीं होता, and what we will be getting is pair of parallel lines. Now the question arises of अपेक्षा is कि सर एग्जाम में आया तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन सबसे पहले पूछा ही एक साथ जाता है, does the pair of equation, linear equation, has a solution? If yes, solve them. इसका मतलब वो इंडिकेशन दे रहा है कि यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम का सॉल्यूशन है ही नहीं, आप सॉल्यूशन करने की कोशिश मत करिएगा। तो जैसे एग्जांपल देते हैं कि एग्जाम में क्या करेंगे अपन, ठीक है। मान लेते हैं अपने को किसी ने एग्जाम में कहा कि सॉल्व 2x + 3y = 6, और दूसरा वाला केस दे दिया उसने अपने को 4x + 6y = 10. Suppose. Now in this case, 2 upon 4 is equals to 3 upon 6 is equals to -6 upon -10, यानी कि ये हो जाएगा 1 upon 2, ये भी 1 upon 2, लेकिन ये 3 upon 5 के इक्वल नहीं है। Just check it. And the system where here A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, but it's not equals to C1 upon C2. The system cannot be solved. अब आप इसको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ना बेटा इसका, तो we will get a pair of parallel lines. It will never be intersecting each other at any point. मीट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, और जब मीट ही नहीं करेंगे तो सॉल्व भी नहीं होंगे। तो मान लीजिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो वो पक्का पूछने के टाइम ही ऐसे बोल देता है, is the pair of linear equation has a solution? If yes, solve it. Right? चलो ऐसा भी नहीं दिया, इंडिकेशन नहीं दी, ऐसी कोई हिंट ही नहीं दी एग्जाम में उसने, तो वो क्या करें अपन, हम जब भी किसी सिस्टम को सॉल्व करने लगे तो एट अ ग्लैंस इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट, फटाफट देखते हैं क्या A1 upon A2 B1 upon B2 के इक्वल है, अगर है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। क्या लिखते हैं, सिंस ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एग्जाम में क्या करना है, कॉपी में क्या करना है, मैं आई विल गिव यू द क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इन जनरल जो हम टॉपिक कर रहे हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, ये थ्योरी चल रही है, अभी क्वेश्चंस मैं अभी दूंगा इनके कि कैसे एग्जाम में आ सकते हैं और आपको आंसर कैसे देना है। लेकिन मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है, तो आप उसको सीधा ऐसे लिखेंगे कॉपी में, सिंस A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2, hence the system has no solution. Got it अपेक्षा? तो एग्जाम में अगर कुछ आ जाए ऐसा, तो अपन क्या लिखेंगे, इस रीजन के साथ उससे बताएंगे कि द सिस्टम विल नॉट बी सॉल्व, और क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, या हम क्यों नहीं सॉल्व करना चाहते इस सिस्टम को, या सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, और हम ही नहीं कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 है, लेकिन C1 upon C2 के इक्वल नहीं है, इसलिए द सिस्टम कैन नॉट बी सॉल्व। राइट, अब क्वेश्चन पूछा ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, तो वो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन देगा जैसे मैंने आपको कल 5th क्वेश्चन दिया था, show that the lines will not intersect, show that the lines are parallel, show that they don't have any common point, or they are not intersecting at each other at any point. Got it? So किसी भी सिस्टम में जब A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 हो, और लेकिन C1 upon C2 के इक्वल ना हो, तो the system has no solution, वो सिस्टम सॉल्व नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने को कोई कहे कि the cost of 2 pens and 3 pencils together is 60 rupees,
whereas the cost of 4 pens and 6 pencils together is 100 rupees. The very first thing is that we cannot find out the value, the cost of a pen and a pencil, because it's not possible. It's not possible, right? अब वो डिस्काउंट वगैरह का कोई फैक्टर हो या फ्री का कोई ऑफर हो तो अलग चीज है। क्लियर? चलो तीसरे फैक्टर पे आते हैं। सोच के देखिए ना, अब क्या होना चाहिए, एक और रेशो हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है कि व्हेन A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के भी इक्वल हो जाए, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के भी इक्वल हो जाए, and is also equals to C1 upon C2. All the three ratios are equal. Suppose in any case, किसी केस में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? Then we will have coincident lines, coinciding lines, or in fact we have infinite number of common solutions. Infinite solutions और overlapping line आएगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आएगी। इसको coincident coinciding कह सकते हैं आप। We will be getting coinciding lines, coincident lines मिलती है अपने को। अब ये क्या बला है, इसको समझते हैं। Both of them have spent 100 rupees, or the cost of a pen and a pencil is 100 rupees. The cost of 2 pens and 2 pencils is 200 rupees. Now find the value of cost of a pen and a pencil. Suppose algebraically हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को और हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि x plus y equals to 100 है। The cost of a pen and a pencil is 100 rupees. Then in the second statement what we are saying is the cost of 2 pens and 2 pencils is 200 rupees. Find the cost of a pen and a pencil. क्या हम इसको सॉल्व कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं हैं। करेक्ट? याद आया 9th क्लास? बिल्कुल आई होगी 9th क्लास में। एक क्वेश्चन होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर में कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 1 2 समथिंग लाइक दिस। आपके शायद प्री बोर्ड में या प्री एनुअल्स में या हाफ ईयरली में भी दिया गया था क्वेश्चन, है ना? आपको याद होगा सबको, एलपीएस वाले स्टूडेंट्स को तो सबको याद होगा। चलिए, तो अगर किसी बच्चे ने कहा x plus y is equals to 3 है, a line which passes through 1 2, एक और इक्वेशन 2x plus 2y is equals to 6 लिखेगा, तो क्या इसको हम दो इक्वेशंस काउंट करें या एक ही इक्वेशन है ये? बिल्कुल सही, ये एक ही इक्वेशन है। तो इस तरह से हम देखें, ये हमें दूसरी इंफॉर्मेशन उसने दी ही नहीं। उसने कहा मैंने एक पेन और एक पेंसिल खरीदा 100 रुपीज में, अगर मैं 2 पेन और 2 पेंसिल खरीदता तो मैं 200 रुपये लगाता। तो भाई तू क्या ज्ञान बांट रहा है? तेरे को मैं ही ज्ञान बांटता हूँ। 3 पेन और 3 पेंसिल खरीद, तेरे को दुकानदार 300 रुपये में देगा। 4 पेन और 4 पेंसिल खरीद, तेरे को दुकानदार 400 रुपये में देगा, एंड सो ऑन। क्या वो अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने को? नहीं। क्या वो उसी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट कर रहा है? हाँ। तो जब वो बार बार एक ही इंफॉर्मेशन को रिपीट कर रहा है तो हाउ कैन बी जंप टू द कंक्लूजन? मिलेगा कहाँ से? आंसर कहाँ से मिलेगा? और जरा इसका थोड़ा सा हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। चलो, हमने ग्राफ बनाया, हमने कहा जी मान लेते हैं ये 0 है, ये 50 है, दिस वन इज 100, दिस इज y एक्सिस ऑफ कोर्स, दिस वन इज 50, दिस वन इज 100। नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट इक्वेशन। इफ x is equals to 0, y is equals to 100, and if y is 0, x is 100, लाइन इस तरह से जाएगी, ओ सॉरी 100 से, राइट? अब इसमें आते हैं, if x is equals to 0, y is 100, and when y is 0, again x is 100। तो क्या दो अलग अलग लाइनें हैं या एक ही लाइन है? देखिए ध्यान से, ये एक ही लाइन है, ये दोनों एक ही लाइन है ना? तो एक ही प्रॉब्लम या एक ही स्टेटमेंट से हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स? वी कैन नॉट। दिस इज व्हाट वी हैव टू गो वी आर सेइंग अगेन, a pair of linear equations in 2 variables can have different cases. Now these are 3 different cases. The very first one is when a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, the system can be solved. We will get a unique solution. But when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but it's not equals to c1 upon c2, कभी हाँ कभी ना। आज मैथ का होमवर्क कर लेते हैं। नहीं यार छोड़ यार, आज इंग्लिश का होमवर्क कर लेते हैं। नहीं यार, मुझे लगता है साइंस का होमवर्क कर लेना चाहिए।
इसका मतलब ना तो वो मैथ्स का करेगा, ना साइंस का करेगा, ना इंग्लिश का करेगा, किसी का नहीं करने वाला वो। क्यों? क्योंकि उसके मन में चल रहा है कभी हाँ कभी ना, इसका मतलब कुछ नहीं करने वाला बेटा। पक्की बात है, 100% श्योर, राइट। और एक और बच्चा है, वो कहता है चलो मैथ्स का कर लेते हैं, हिंदी का भी कर लेते हैं, इंग्लिश का भी कर लेते हैं, मेनी सॉल्यूशंस, डेफिनेटली ही विल सॉल्व ऑल। क्यों? क्योंकि उसके सबके पास हाँ है। So again, such type of question, if occurs in examination, again I'm talking about in terms of in the language in which Apeksha always thinks about mathematics, is that whenever you talk about such type of system, again, if he says, suppose मान लो आ ही गया ना कि question आ ही गया कि solve this system of equation, we will simply write, since जैसे एक example लेते हैं, चलो 2x minus 3y is equals to 10, और एक इक्वेशन ले लेते हैं 4x minus 6y is equals to 20। चेक कीजिए यहाँ पे 2/4 is equals to -3/-6 is equals to -10/-20। ठीक है, ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये भी 1/2। when a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, तो हम इसको पूरे रीजन के साथ लिखेंगे आंसर शीट में। since a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, the system has infinite common solutions। रीजन जरूर बताएंगे बेटा, सॉल्व नहीं कर सकते, और वो बोलेगा ही नहीं वैसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसको खुद को पता है वो क्या कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो जब वो सॉल्व ही नहीं कर सकता तो वो पूछेगा भी नहीं ऐसे अपने से, वो क्या पूछेगा कि कैन द सिस्टम बी सॉल्व। क्वेश्चन का फॉर्मेट फिर वापस बता रहा हूँ, मैंने अभी तक क्वेश्चन समझा ही नहीं है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएंगे, लेकिन वैसे ही चलते चलते में बात आ रही है मेरे दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से सोचते हैं कि क्या पूछेंगे एग्जाम में। वो मैटर बाद में समझना चाहिए, हमेशा हमेशा समझना चाहिए कि हमें क्या समझाया जा रहा है। पहले हम उस मैटर को समझते हैं, फिर वो किस फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हमें उसकी बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए अपने को अगर इस सिस्टम के बारे में पूछा गया तो हम बता सकते हैं आराम से कि देखो यहाँ पे a1/a2, b1/b2, c1/c2 all are equal, hence the system has infinite number of solutions। खत्म, कोई नहीं पूछेगा सोल्यूशन इसके, क्योंकि निकाल ही नहीं सकते अपन। ठीक है, in the beginning of the class I was saying that you need to write it in your fair copy, not the graph copy, the normal one। okay, I need this thing in the copy। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, अगर नहीं नोट करें तो इंतजार कीजिए इवनिंग का, by evening I will send you this। okay, so remember all these three cases are very important from this chapter's point of view, of course from examination point of view also, right? So when we have a1/a2 not equals to b1/b2, we have unique solution। a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं हो, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। और अगर सारे ही बराबर हो जाएं, a1/a2 का रेशो b1/b2 के रेशो से और c1 और c2 के रेशो से भी इक्वल हो जाए, सब रेशो अगर इक्वल हो जाए, तो द सिस्टम हैज infinite number of solutions। the points, the lines are coinciding lines, overlapping lines, और इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगेन आप अगर नहीं करना चाहते या आपको लग रहा है कि कॉपी में मैं कैसे लिखूंगा, क्या क्वेश्चन लिखूं ये वो, तो डोंट डू इट, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, ओके, बाय इवनिंग। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, the very first type of question which comes in this section or related to this topic is that check whether the pair of equations have a unique solution or no solution or coinciding many solution, या कुछ भी ऐसा। जैसा उसने कहा, चलो 1 और 2 मार्क क्वेश्चन है बेटा, बहुत छोटे से है ना। उसने कहा x minus y is equals to 6 और x plus y is equals to 10। What type of system it is? State whether it will have a unique solution, no solution or infinite number of solutions। या फिर आपको कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि geometrically it has unique solution, or sorry, what I want to say is, yes, intersecting lines, coincident lines or parallel lines।
ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, सिंपल सी बात। Here 1 upon 1 a1 upon a2 minus 1 upon 1 b1 upon b2 -6 upon -10। आप इसको 6 upon 10 भी लिख सकते हो, बात एक ही है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये -6 इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये -10 अपॉन -10 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। C1 और C2 -6 और -10 है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चेक कीजिए, अप्रोप्रिएट साइन लगाइए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा या नॉट इक्वल टू का? नॉट इक्वल टू का। तो नॉट इक्वल टू का है तो वो तीसरे को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो व्हेन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, समझाइए उसे, यहाँ पे a1 upon a2 और b1 upon b2 आपस में इक्वल नहीं है, they are not equal to each other, hence the system has a unique solution, has one solution भी कह सकते हैं। अगर इस टर्म्स में नहीं पूछा क्वेश्चन को तो वो ऐसे पूछ सकता था कि ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो हम बता सकते हैं hence the system represents a pair of intersecting lines। खत्म। जस्ट वन मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन, दोनों इंटरप्रिटेशन आपको आने चाहिए। देखिए सिंपल सी बात, आपको वो ये भी पूछ सकता था कि इसके यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है, वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो हम क्या बता रहे हैं उसे कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। उसने कभी भी इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला ड्रॉ द ग्राफ, तो सर कहेगा तो करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट वन मार्क क्वेश्चन एंड ही इज आस्किंग फॉर व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइंस आर दीस टू, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट टू बी डन इन योर कॉपी एज सच, अगर आप करना चाहते हो तो लिख सकते हैं, साथ साथ में अगर क्लास में लिख पा रहे हो तो, अगर नहीं तो मैं आपको बाद में दूंगा। जैसे मैंने कल आपको ग्राफ समझा दिया था, उसके बाद 5 क्वेश्चन दिए थे ना ग्राफ के, और मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली। आपने मुझे सेंड भी किया पीडीएफ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर वर्क, इट वाज नीट एंड क्लीन। बहुत छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको समझाई थी वो सबका आपने ध्यान रखा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक टीचर स्टूडेंट को समझाता है और टीचर उसको ओबे करता है। तो चलिए क्वेश्चंस मैं आपको बाद में दे दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा, आपने ध्यान ये रखना है कि आपका काम जो है वो रेगुलर होते रहना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन में बेटर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, किस तरह का सिस्टम है ये, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पा रहे होंगे। 1/2 1/4 -6 upon -10. 1/2 is not equal to 1/4. Again, the system is of, yes, it is a system of unique solution, है ना। चलिए अगर हम इसे 5x + 5y - 30 = 0 लिखते हैं तो what sort of system it is? मुझे लगता है आप सबके आंसर आ रहे होंगे मन ही मन में। 1/5 1/5 -6 upon -30। चेक कीजिए, 1/5 1/5 और ये भी 1/5, 5 6 30 = के साइन आएंगे दोनों में। When a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2 हो तो yes, coinciding lines, coincident lines, या the system has infinite number of common solutions, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ और लेते हैं, जैसे कि इसको +30 ले लेते हैं। 1/5 is equals to 1/5 but is not equals to -6/30। कभी हाँ कभी ना, ना, इसका मतलब the system cannot be solved।
लेकिन एग्जाम में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर बताएंगे ऐसे a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2. Therefore, hence the system has no solution. If he is talking about in terms of lines, geometrical representation, so the system will have parallel set of parallel lines. ठीक है, right? How much time is left? थोड़ा सा टाइम बचा है, सर लक्ष्य मोदी से बात कराइएगा। चलिए कि आपको वर्ड्स मिलेंगे दो, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। इंग्लिश के वर्ड्स हैं दोनों। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जहां पे हमारी सहमति होती है, जहां पे हम मिलते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में हम देखें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जो यूनिक सॉल्यूशन वाले केस होते हैं और मेनी सॉल्यूशन वाले केस होते हैं वो तो हो गए कंसिस्टेंट, और जो आपस में कभी नहीं मिलते, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो होता है इनकंसिस्टेंट। इसी बात से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से अपन कल बात शुरू करेंगे, लेकिन फिर जाते जाते फिर याद दिला दूं, इनकंसिस्टेंट वो जो कभी नहीं मिलते, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि पैरेलल लाइंस वाला। इनकंसिस्टेंट वो होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जहां हम मिलते हैं, सहमति होती है, जहां हमारे विचार मिलते हैं, हम कहते हैं यार इससे मेरी बनती है, तो जिससे बनती है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंसी में अपन चेक करिएगा, आप चेक करिएगा, जो यूनिक सॉल्यूशन है वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, जो मेनी सॉल्यूशन है वो एक के ऊपर एक होते हैं तो वो भी मिलते हैं, तो वो दोनों तो कंसिस्टेंट होते हैं, और इनकंसिस्टेंट पैरेलल वाला होता है। बात करेंगे इसी चीज से, कल कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। तो आज जो मैं शाम को पीडीएफ भेज